دوستو ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ادب کے ساتھ مخاطب ہوا۔ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک یہودی ہوں اور میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا دین سچ میں اس آخری نبی کا دین ہے جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہماری الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ اے خلیفہ دوم، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے ان سوالات کا جواب اس طریقے سے دیا کہ ان جوابات کو میری عقل تسلیم کر لے تو میں اپنا دین چھوڑ کر آپ کے دین کی پیروی کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تم واقعی میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو تم صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ، تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب وہیں سے ملیں گے۔ تب وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور نہایت ادب و احترام سے مخاطب ہوا۔ اے علی رضی اللہ عنہ، میں نے اپنی الہامی کتابوں میں سنا ہے کہ یہ دین ایک سچے نبی کا دین ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے تسلی بخش جوابات سن کر میں آپ کے دین کی پیروی کر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے ابن آدم، مجھ سے جو بھی سوالات کرنا چاہتے ہو تو بلا جھجک کہو، میں تمہیں ان کے صحیح جوابات دوں گا۔ تب وہ شخص کہنے لگا، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں اور نہ جسم، سارے کا سارا منہ ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین پر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے، کبھی رکتی نہیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ روئے زمین پر ایسا کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا کیا گیا تھا۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کا دین کہتا ہے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے مگر پیشاب اور پاخانہ نہ کریں گے، یہ آخر کیسے ممکن ہے؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کون سا درخت ہے جس کے سائے میں انسان 100 سال تک چلتا رہے، اس کا سایہ پھر بھی ختم نہ ہو۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا انسان ہے جس کی عمر خود تو 50 سال تھی لیکن اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، یعنی وہ بیٹا اپنے باپ سے 50 سال بڑا تھا۔ میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ اس زمین پر ایسے کون سے انسان تھے جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا۔ پھر آٹھواں سوال یہ ہے کہ اس زمین پر ایسے کون سے 2 جانور تھے جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا تھا۔ میرا 9واں سوال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کون سے پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر بھیجا تھا۔ وہ پیغمبر نہ انسان تھے، نہ جن اور نہ ہی فرشتہ۔ میرا 10واں سوال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی کلام کیا تھا؟ اگر کلام کیا تھا تو کس سے کیا تھا اور کیا کلام کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ تو ہاتھ ہے، نہ پاؤں اور نہ جسم ہے، صرف منہ ہی منہ ہے۔ تو اے بندہ خدا، تم اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لو کہ وہ چیز دوزخ کی آگ ہے۔ دوزخ کی آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ دوزخ کی یہ آگ کافروں اور مشرکوں کو اس طرح کھائے گی جیسے کوئی صدیوں سے بھوکا جانور ہو۔ اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے لوگ رو رو کر تڑپ کر موت کی دعا مانگیں گے، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اب تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے؟ تو وہ چیز پانی ہے۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے پانی کو منتخب کیا۔ ناظرین، پانی کے چلنے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک یہ بھی راز رکھا ہے کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے خود بخود راستے بنتے چلے جائیں گے، جیسے پانی خود بخود اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں نا امیدوار اور پریشان رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے منزلیں خود بخود آسان ہو جاتی ہیں۔ تم اللہ کی راہ پر چلو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جو بہت جلد اگایا گیا تھا۔ تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک دم زمین سے اگایا تھا۔
40 दिन तक मछली के पेट में रहने की वजह से आपका सारा गोश्त गल चुका था और जिस्म गलने की वजह से आप अलैहिस्सलाम रो रो कर अल्लाह ताला से सेहतयाबी की दुआ मांगा करते थे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके फौरन आपकी दुआ कबूल की। ज़मीन को हुक्म दिया गया कि ज़मीन मेरे नबी यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए एक सायादार और फलदार दरख्त उगाओ, और अल्लाह ताला के हुक्म से एक ही लम्हे में ज़मीन से फलदार और सायादार दरख्त निकल आया। इस दरख्त पर लगे फल को खाकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा सेहतयाब हो गए। बस ये वही दरख्त थे जो ज़मीन से बग़ैर पानी के एक लम्हे में पैदा हुआ था। अब तुम्हारा अगला सवाल ये है कि जन्नत में लोग खाएंगे पिएंगे लेकिन इनको हाजत पेश नहीं आएगी। तुम कहते हो कि ये नामुमकिन है। ऐ इब्ने आदम, इसकी मिसाल दुनिया में ही मौजूद है। जैसे हर बच्चा माँ के पेट में 9 माह तक खुराक की नाली से खाता है और 9 महीनों तक माँ के पेट में खाने पीने के बावजूद भी वो पखाना और पेशाब नहीं करता, इसी तरह अगर अल्लाह ये चाहे कि जन्नत में उसके लोग खाएं पिएं और उन्हें रफ़ा हाजत पेश ना आए तो ऐसा ही होगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जन्नत में जब लोग जहाँ से जी चाहे खाएंगे, लेकिन जब इनको पेशाब और पखाने की हाजत पेश आएगी तो अल्लाह ताला की तरफ से बस एक खुशबूदार डकार आएगी तो इनकी हाजत रवाई हो जाएगी। अब तुम्हारा अगला सवाल ये है कि वो कौन सा दरख्त है जिसके साए के नीचे इंसान घोड़े की रफ्तार से 100 साल तक चलता रहे फिर भी उसका साया ख़त्म ना हो। तो ऐ इब्ने आदम, वो दरख्त शजरे तूबा है। ये दरख्त जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है। ये इतना बड़ा दरख्त है कि इसकी शाखें और टहनियाँ जन्नत में मौजूद हर घर तक पहुँचती हैं। ये दरख्त 7वें आसमान तक फैला हुआ है। इस दरख्त के नीचे अल्लाह ताला ने शिक, ज़ाफ़रान और अंबर के बड़े बड़े पहाड़ बना रखे हैं। जन्नती लोग जिस फल की भी ख्वाहिश करेंगे वो इन्हें उसी तरह मुयस्सर आएगा। तुम्हारा अगला सवाल ये है कि वो इंसान कौन सा है जिसकी उम्र 50 साल है मगर उसके बेटे की उम्र 100 साल थी। वो अपने बेटे से 50 साल छोटे थे। तो ऐ इब्ने आदम, वो इंसान हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। जब अल्लाह ताला के नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने गधे पर सवार होकर कहीं जा रहे थे तो रास्ते में आपकी नज़र एक ऐसी कौम पर पड़ी जिस पर अल्लाह ताला ने अपना अजाब नाजिल किया था। जैसे ही आपने इस कौम को अजाब में मरे हुए पाया तो आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरा परवरदिगार इन्हें दोबारा ज़िंदा करेगा। ऐ काश मैं इनको ज़िंदा होते देख सकता कि मेरा अल्लाह इन्हें कैसे दोबारा ज़िंदा करेगा। अल्लाह के नबी का ये कहना था कि अल्लाह ने मलकुल मौत को ये हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ और मेरे नबी की ख्वाहिश को पूरा करो। बस मलकुल मौत ने आपकी जान कब्ज़ कर ली और इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और उनके साथ गधे को 100 साल तक सुलाए रखा और 100 साल के बाद दोबारा ज़िंदा किया। तो ऐ इब्ने आदम, जब मलकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ किया तो उस वक़्त आपकी उम्र 50 साल थी और इसी साल अल्लाह ताला ने आपको एक बेटा अता किया था। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल बाद दोबारा ज़िंदा होने के बाद अपने घर पहुँचे तो आप क्या देखते हैं कि आप खुद तो 50 साल के हैं लेकिन आपका बेटा 100 साल का हो चुका है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से फरमाया, जिस तरह मैंने तुम्हें 100 साल बाद ज़िंदा किया बिल्कुल उसी तरह मैं बस्ती के लोगों को क़यामत के दिन ज़िंदा करूँगा। अब तुम्हारा 7वां सवाल ये है कि वो लोग जिनको मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया गया वो कौन है। अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ को 309 साल तक एक ही गार में सुलाए रखा और 309 साल बाद उसी गार में दोबारा ज़िंदा किया। बेशक ये अल्लाह ताला के अजीम मौजज़ों में से एक मौजज़ा है। तुम्हारा 8वां सवाल ये है कि वो 2 जानवर जिन्हें मरने के बाद इस ज़मीन पर दोबारा ज़िंदा किया गया वो जानवर कौन से हैं। तो ऐ इब्ने आदम, तुम जान लो कि इन 2 जानवरों में से एक जानवर असहाबे कहफ का कुत्ता है। अल्लाह ताला ने इस कुत्ते को भी असहाबे कहफ के साथ 309 साल बाद ज़िंदा किया था।
दूसरा जानवर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा है जो इनके साथ 100 साल तक सोया रहा और अल्लाह ने 100 साल बाद इस गधे को भी दोबारा जिंदा किया। तुम्हारा अगला सवाल ये है कि वो अल्लाह ताला का कौन सा पैगंबर है जो कि अल्लाह का पैगाम लेकर जमीन पर उतरा, लेकिन ना ही वो जिन है, ना ही इंसान और ना ही फरिश्ता है। तो ए इब्ने आदम, वो पैगंबर एक कौवा था। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था तो कत्ल करने के बाद काबिल सोचने लगा कि मैं इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाऊंगा। इस वक्त अल्लाह ताला ने एक कौवे को जमीन पर भेजा तो उस कौवे ने दूसरे कौवे को मारकर जमीन में दफना दिया। इस कौवे ने काबिल को बताया कि वो अपने भाई हाबिल की लाश इस तरह जमीन में दफना दे, और इस तरह ये कौवा अल्लाह का पैगंबर बनकर जमीन पर पहुंचा जो ना इंसान था, ना जिन और ना ही कोई फरिश्ता। ऐ इब्ने आदम, तुम्हारा 10वां सवाल ये है कि क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से क्या अल्लाह ताला ने किसी से कलाम किया था? तो ऐ इब्ने आदम, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद एक एक इंसान से कलाम किया था, बल्कि इंसानों ने भी अल्लाह से कलाम किया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा का ये जवाब सुनकर वो यहूदी कहने लगा, ए अली रजी अल्लाह अन्हा, हर एक इंसान ने अल्लाह से या अल्लाह ने हर एक इंसान से कैसे कलाम किया? तब हजरत अली फरमाने लगे, अल्लाह के कुरान में मौजूद है, हजरत आदम की तख्लीक के बाद अल्लाह ने हर उस इंसान से कलाम किया जिसको अल्लाह ने ज़मीन पर भेजा था। तो अल्लाह ने आलम मिसाक में एक एक इंसान से कलाम करके अलहदा अलहदा वादा लिया था कि ए मेरे बंदे, क्या मैं ही तेरा रब हूँ और क्या मैं ही ज़मीनों आसमान और इसमें बसने वाली तमाम मखलूक़ात का खालिक व मालिक हूँ। और तमाम इंसानों ने जवाब दिया था, बेशक ए खुदा, तू बहुत अजमत वाला है और बड़ाई वाला है, हर चीज़ तूने ही पैदा की है, बेशक तू ही हमें मारेगा और तू ही हमें जिंदा करेगा। बस अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए ना ख़त्म होने वाली ऐशो इशरत है और जन्नत की तमाम लज्जतें हैं, लेकिन तुम्हें जन्नत की तमाम लज्जतें और ऐशो इशरत देने से पहले तुम्हारे वजूद से खुदा होने की अहमियत को मिटाकर कुछ अरसे के लिए तुम्हें ज़मीन पर भेजना चाहता हूँ। ज़मीन पर जाने के बाद अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में मुझे तलाश किया, मुझे पहचान कर अगर दोबारा अपना खुदा मान लिया, तो तुम्हारे लिए जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिनका तुम ज़मीन पर तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हज़रत अली ने उस यहूदी से फरमाया कि ए इब्ने आदम, इंसानों को फरिश्तों से इसलिए अफजल करार दिया गया है कि फरिश्ते पहले दिन से जानते हैं कि उनको पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन जब किसी इंसान का बच्चा इस ज़मीन पर पैदा होता है तो उसके दिमाग में अल्लाह का तसव्वुर नहीं होता। इसी वजह से इंसान फरिश्तों से अफजल है, क्योंकि अल्लाह ने इस कायनात की सबसे अजीम नेमत इंसान के दिमाग को रखा है ताकि वो अल्लाह की इस नेमत को इस्तेमाल करके अल्लाह की ज़ात को तलाश करे, अल्लाह के एक होने का इकरार करे ताकि वो दुनिया में फलाह पा सके। अल्लाह ने इंसानों की आजमाइश को आसान बनाने के लिए अपनी आसमानी किताबें और 1,24,000 कमोबेश नबी और पैगंबर भेजे, लेकिन अफसोस ये इंसान दुनिया की लज्जतों में इस कदर खो गए हैं कि वो ये बात भी भूल गए हैं कि वो इस दुनिया में आजमाइश के तौर पर भेजे गए थे। जो लोग अपनी अकल की तलाश करके अल्लाह की तलाश नहीं करते, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आने वाला है कि जब उनको जहन्नुम की आग में डाला जाएगा और वो चीख चीख कर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और अल्लाह ताला से रो रो कर फरियाद करेंगे कि उनको एक बार फिर से दुनिया में भेजा जाए। वो खालिस उसकी इबादत करेंगे, लेकिन अब वक्त गुजर चुका होगा, अल्लाह पर उनकी किसी फरियाद का कोई असर नहीं होगा। जैसे ही यहूदी ने हज़रत अली के मुंह से ये बातें सुनी तो उसने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।